Hello guys, here the smart buddy. I am going to continue the biology NCRT chapter number 1 class 12th. In this video, you know the very interesting facts of the plants and knowledge also. So don't forget like and subscribe the video. So we start the topic. Our second topic of this chapter is the types of the asexual reproduction. In the previous video, we discussed the sexual reproduction and the asexual reproduction and also the difference between them. So we now start the second topic, that's the types of the asexual reproduction. The first topic and the first part of this topic is a fission. What is a fission? Here, the simplest meaning of the fission is a splitting or the breaking up into the parts. Anything splitting or breaking, that is known as the fission. But in the biology, how can we define the fission in the organism? So the first part of this asexual reproduction, the mode of the asexual reproduction is the fission. Many single-celled organisms like bacteria, protozoa just split into two identical parts during cell division, leading to the creations of organisms. This is known as the fission. जो मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल इज़ अ प्रोटोजोआ एंड द बैक्टीरिया, जब वो स्प्लिट हो जाते हैं टू आइडेंटिकल हाफ्स में ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, द मोड ऑफ द सेल डिवीजन इज एनीथिंग लाइक इज़ अ माइटोसिस leading to the creation of the new organism. This is known as the fission. And the fission is a two types. In organism, the fission, we can see that there is a two types. First is a binary fission and second is a multiple fission. Binary fission, the examples of the binary fission is the amoeba and the paramecium. Multiple fission is example is a plasmodium. We know about all the examples also. In amoeba, the process of the binary fission just like this, and the steps and those all the steps is included in the process of the binary fission. First, the nucleus of the amoeba. Second step of this process, the elongation of the nucleus, and the third is the development of groove. थर्ड स्टेप में क्या होता है कि डेवलपमेंट होती है ग्रूव की. ग्रूव मतलब ग्रूव इट इज़ अ टाइप ऑफ द pseudopodia of the paramecium and also the amoeba. तो उसकी जो साइट्स की डेवलपमेंट होती है उसको हम ग्रूव कहते हैं. फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है, डिवीज़न होती है न्यूक्लियस की एंड द साइटोप्लाज्म की. डिटेक्शन होती है मतलब जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं. फोर्थ प्रोसेस में हमारा डिवीज़न होती है एंड द न्यूक्लियस ऑफ द साइटोप्लाज्म की. एंड द लास्ट प्रोसेस एंड द लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस टू डॉटर सेल्स अमीबा बन के आ जाते हैं. एंड इन द प्लास्मोडियम वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द इन द मल्टीपल फिशन वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द प्लास्मोडियम. प्लास्मोडियम में क्या होता है, बस सिंपल सा साइटोप्लाज्म होता है, एक सेल होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है एंड द साइटोप्लाज्म इन एवरीवेयर एंड द ऑर्गेनल्स ऑल्सो प्रेजेंट. एंड द सेकेंड स्टेप, मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस इन द मल्टीपल फिशन. सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारे डॉटर सेल्स अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं. ये ऐसे अलग नहीं होते, बहुत सारे अंदर ही डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. अब जब जैसे ही उन्हें अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे कि अनफेवरेबल कंडीशन में आप टेम्परेचर भी ले सकते हैं. जैसे कि कंडीशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि वो अपने डॉटर सेल्स को रिलीज़ करेगा या नहीं, तो उसके लिए टेम्परेचर एक कंडीशन हो सकती है. तो हो गया. फिर जब वो उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी या फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो डॉटर सेल स्प्लिट आउट हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे बाहर, जिसे हम कहेंगे मल्टीपल फिशन एंड द एग्जाम्पल इज अ प्लास्मोडियम. नेक्स्ट द मोड ऑफ द asexual reproduction. Next, the mode of the asexual reproduction is the budding. What is a budding? It is an asexual mode of the
produce new organism. In this process, the new organism is developed from the small parts of the parent body. बर्डिंग में क्या होता है, एक प्रोजेक्शन, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन किसी भी पेरेंट बॉडी पर डेवलप हो जाते हैं और उसी से ही डॉटर सेल्स डेवलप होते हैं. क्या होता है, एक एसेक्सुअल मोड होता है प्रोड्यूस करने का न्यू ऑर्गेनिज्म को. इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, डेवलप फ्रॉम द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द पेरेंट बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द ईस्ट. इन दिस फर्स्ट द बर्ड बिगिन टू फॉर्म ऑन द पेरेंट सेल. जो बर्ड होता है वो पेरेंट सेल पे बनना शुरू होता है. सेकेंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेम एज दी लाइक इन अमीबा, बट इज अ सम टाइप डिफरेंट ऑल्सो. सेकेंड प्रोसेस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड थर्ड प्रोसेस में बर्ड बिकम्स अ सेपरेट डॉटर सेल. थर्ड प्रोसेस में ईस्ट में क्या होता है कि जो डॉटर सेल होते हैं वो डिटैच्ड हो जाते हैं. डिटेक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इसमें शुरू हो जाता है. ये न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म दोनों अलग हो जाते हैं. एक न्यू बर्ड पेरेंट बॉडी के ऊपर आ जाता है एंड देन बिकम बर्डिंग प्रोसेस चेंज ऑफ द सेल्स एंड द न्यू daughter birds become form. It is an example of the budding in east. एग्जाम्पल ऑफ बर्डिंग की बात करें तो हमें जो बर्डिंग देखने को मिलती है, फर्स्ट इन द हाइड्रा, बर्डिंग इन द हाइड्रा, एंड सेकंड budding in hydra first, and the second is a budding in the sponges. The sponges is belong to the phylum Porifera. We also known very well because we study in the class 11th also animal kingdom. बर्डिंग इन अ हाइड्रा, जो बर्डिंग होती है हाइड्रा में, और इसमें जो बर्ड्स बनते हैं वो एक्सोजीनियसली बनते हैं. इसमें एक्सटर्नल या फिर एक्सोजीनियसली बर्ड फॉर्म्ड होते हैं. बट इन द केस ऑफ द स्पॉन्जेस, द बर्ड्स इज फॉर्म्ड इन इंटरनल एंड द एंडोजीनियसली. और जो बर्ड्स होती है जो अंदर फॉर्म होते हैं उससे हम कहते हैं गैम्यूल्स, जो कि अंदर ही फॉर्म होते हैं. सम फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस एंड द स्पॉन्जिला इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, अगर आप गैम्यूल की पिक्चर देखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके का होता है. इसमें ये एक गैम्यूल है, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिसको हम गैम्यूल्स कहते हैं. और जो कुछ स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, इनमें स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, ये जो कि अलग अलग मिनरल से बने हुए होते हैं. ठीक है, ये गैम्यूल्स होते हैं जो कि इंटरनल ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होते हैं. एंड जो इसका मोस्टली जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है हमारा स्पॉन्जेस, जो कि बिलोंग करता है फाइलम पोरिफेरा से. हम जानते हैं फ्रेगमेंटेशन. व्हाट इज़ द फ्रेगमेंटेशन? तो फ्रेगमेंटेशन, द मीनिंग ऑफ द फ्रेगमेंटेशन, द पेरेंट ब्रेक इनटू मल्टीपल पीसेस ऑल द मैच्योरिटी ऑफ विच गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है आफ्टर द मैच्योर. जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो ब्रेक हो जाते हैं, जिससे गिव राइज करते हैं वो न्यू इंडिविजुअल को. जस्ट सिंपल एग्जाम्पल इज़ दिस इज इन अ मल्टी सेलुलर, और ज़्यादातर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है. एग्जाम्पल इज अ स्पाइरोगेरा. स्पाइरोगेरा में अगर ये मैच्योर हो गया तो इनके ऊपर एक डिटेक्शन आ जाती है, एक लाइन होती है जिसके थ्रू ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. और वो जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो इनके पास एक पोटेंशियल होती है, इनके पास एक टेंडेंसी होती है जिसके थ्रू ये अलग सेल में डिवाइड हो जाते हैं. अब फोर्थ हम देखते हैं रीजनरेशन. रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन इट इज़ एन एक्सीडेंटल प्रोसेस. Regeneration, it is an accidental process. Parent if cut or broken into multiple pieces and each give rise to a new individual. What is regeneration में क्या होता है कि कोई भी जो पेरेंट बॉडी वो एक्सीडेंटली कट जाती है. इसमें कोई मैच्योर होने पे कट नहीं होती है, इसमें एक्सीडेंटली हो जाता है कोई भी प्रोसेस. मान लो कोई वाटर ऑर्गेनिज्म वाटर में, तो उसमें कोई कट आ गया, कहीं से वो छिल गया, कहीं से थोड़े से स्पॉट्स आ गए, कट लग गई, तो उसमें एक्सीडेंटली होता है. जो कि कट होने के बाद फिर मल्टीपल पीसेस में हो जाते हैं, जिससे गिव राइज करते हो न्यू इंडिविजुअल को. और द एग्जाम्पल इज अ प्लेनेरिया एंड द फ्लैट वर्म, स्टेप वर्म, हाइड्रा.
ऑल्सो अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन द फ्रेगमेंटेशन एंड द रीजनरेशन, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट होता है वो मैच्योर होने के बाद न्यू इंडिविजुअल में डेवलप करता है, बट इन द केस ऑफ द रीजनरेशन एक्सीडेंटल प्रोसेस होता है ये, इसमें कोई मैच्योरिटी के बाद नहीं होता। इसमें एक्सीडेंटल प्रोसेस है, ब्रोकन या कट लगने के कारण ही न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है पेरेंट बॉडी। अब हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन नाम से पता चल रहा है हमें, नाम से पता चल रहा है कि स्पोर की फॉर्मेशन हो रही है, स्पोर की फॉर्मेशन हो रही है। It refers to the formation of spores from the vegetative cells during unfavorable environmental condition। इसका क्या मतलब होता है? इट रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स ड्यूरिंग द अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। किसी भी अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में स्पोर का फॉर्म होना, वेजिटेटिव सेल्स में स्पोर का फॉर्म होना, तो उसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन अगर हम डेफिनेशन देखें, स्पोर्स क्या होते हैं, what is the meaning of the spores? So spore is a unicellular bodies in parent that are capable of growing into new individuals। स्पोर एक पेरेंट बॉडी से अटैच्ड एक पार्ट होता है जो कि कैपेबल होता है, जिनके पास टेंडेंसी होती है न्यू इंडिविजुअल में डेवलप करने की। और हम एनसीईआरटी के थ्रू देखें तो इसमें 2 एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ कॉनिडियोस्पोर्स एंड सेकंड इज़ अ ज़ूस्पोर्स। कॉनिडियोस्पोर्स होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स, जो कि मोस्टली जो इसका कॉमन एग्जाम्पल है वो है फंगस ऑफ द पेनिसिलियम। ये ज़्यादातर फंगस में पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल एक फंगस है पेनिसिलियम, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। ये नॉन मोटाइल का क्या मतलब कि वो हिल डुल नहीं सकते, कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं। एंड द सेकेंड इज़ अ ज़ूस्पोर्स, जो कि मोटाइल होते हैं। इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और उस फ्लैजिला का इस्तेमाल ये लोकोमोशन के लिए करते हैं। और इनका सेकंड फीचर क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, इनका स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा होता है। लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल इज़ अ क्लेमाइडोमनेस। एंड द कॉनिडियो में अगर आप देखो तो पेनिसिलियम, यहाँ पर एक फंगस है पेनिसिलियम, इसके ऊपर इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसके ऊपर स्पोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉनिडियोस्पोर्स, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म होता है, एक मोड होता है। बट इन द केस ऑफ द जू स्पोर्स, अगर आप देखो जू स्पोर्स, तो जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं। मोटाइल होंगे ये कैसे पता चलेगा हमें, क्योंकि इनके पास एक 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। 2 क्या, कुछ भी, कितने भी फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं, बट इनके पास कंडीशन होनी चाहिए कि इनके अगर ये मोटाइल है तो इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम अपना अगला मोड देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट इज़ अ मैथड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इन विच a somatic part of the plant detaches from the body of the mother and develop a new independent plant under the suitable environmental condition। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का जिनमें सोमैटिक पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है प्लांट का। व्हाट डू यू मीन बाय द सोमैटिक पार्ट? सोमैटिक पार्ट वो पार्ट होते हैं जो कि प्लांट से अटैच्ड रहते हैं और जिनके पास एक टेंडेंसी होती है ग्रो करने के लिए। अगर आप उसे काट कर, फॉर एग्जांपल इन द पोटैटो के ऊपर आपने आई तो देखी होगी, पोटैटो आई, जब आप पोटैटो आई को कट करके, उस वाले भाग को कट करके कहीं और पौधे मिट्टी में लगा दो, तो वो एक, उनके पास एक पोटेंशियल होता है कि अपने आप ही ग्रो करे, तो दैट इज़ नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। एंड दिस टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इज नोन एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। ठीक है, the detachable somatic parts involved in vegetative propagation is called the vegetative propagules। Here you can see that the detachable somatic parts involved in vegetative propagation। डिटैच मतलब वो पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड होते हैं। आई को ही देख लो, वो
आई पेरेंट बॉडी यानी कि पोटैटो से डिटैच्ड होता है, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहते हैं। अब कुछ हम एग्जांपल देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स के ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। पोटैटो में हमने देखा आई होता है, जिंजर में राइजोम होता है, राइजोम एक नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही कुछ अगेव एक प्लांट होता है जो कि हमारे देश में नहीं पाया जाता, कहीं और दूसरी जगह पाया जाता है, इनमें होता है बल्बिल। और एक चौथा है वाटर हायसिंथ, इनमें होता है ऑफसेट, ऑफसेट एज अ वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। ऑफसेट का इस्तेमाल करके हम इनको नई जगह पे लगा सकते हैं टू रिप्रोड्यूस करवाने के लिए। एंड ब्रायोफिलम में लीफ बर्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स क्या होते हैं? वेजिटेटिव प्लांट्स एंड द प्रोपोग्यूल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स? वेजिटेटिव रिफर्स टू द हेयर द सिंपली मीनिंग द वेजिटेटिव रिफर्स टू द प्लांट्स एंड द प्रोपोग्यूल्स क्या होते हैं? हेल्पिंग स्ट्रक्चर होते हैं एक तरीके से, जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। दे हैव द पोटेंशियल एंड टेंडेंसी टू ग्रो इन अ होल प्लांट। इनके पास टेंडेंसी होती है ग्रो करने के लिए, जिससे ये ग्रो करके होल प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। ये एक रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप देखो मिंट में जो हमारा पुदीना होता है, उनमें होता है जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, वो पाया जाता है शक्कर, शक्कर पाया जाता है। एंड इन द ग्रास द वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स इज द रनर। ऑफसेट की एक सिंपल डेफिनेशन देखें तो क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रांच बाय विच द प्लांट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये एक पार्ट होता है ब्रांच का या किसी भी प्लांट का, जिससे रिप्रोड्यूस किया जाता है एसेक्सुअली। अब हम कुछ बातें जानते हैं वाटर हायसिंथ के बारे में। हायसिंथ के बारे में, वाटर हायसिंथ क्या होता है? ये एक तरीका का प्लांट होता है जो कि ज़्यादातर वाटर में, कौन से वाटर में पाया जाता है? ये हमारा रनिंग वाटर में नहीं पाया जाता, ये स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है। स्टैंडिंग मतलब स्टैगनेंट वाटर की रुका हुआ पानी में ही पाया जाता है। वाटर हायसिंथ इज ऑल्सो नोन एज द टेरर ऑफ द बंगाल। साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है? इकाइनियोक्रेसिपिया। इनके जो फ्लावर होते हैं वो ज़्यादातर पिंक टू वायलेट कलर के होते हैं। लीफ इनकी कर्ल्ड होती है लाइक अ बाउल। ऑफसेट, ये जो प्लांट्स होते हैं ये ऑफसेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, मतलब इनके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स पाया जाता है वो होता है ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट पाया जाता है इनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। अगर इसके नाम से देखें तो टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, हम इसे टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं? दे कॉल द टेरर बिकॉज दे डिप्लीट द ऑक्सीजन इन वाटर। इनको टेरर इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये ऑक्सीजन को डिप्लीट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। हेल्पफुल क्या है? नुकसान, हार्मफुल होते हैं फॉर द ऑर्गेनिज्म, वाटर ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑल ऑक्सीजन को फ्रॉम द वाटर बॉडीज। बिकॉज दे ग्रो रैपिडली, ये लार्ज अमाउंट में ग्रो होते हैं फॉर, बिकॉज ये कनेक्शन से जुड़े होते हैं जो कि ऑफसेट होते हैं, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहते हैं। इन प्लांट का वाटर हायसिंथ का जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स होते हैं उसे हम कहते हैं ऑफसेट। और ये लार्ज अमाउंट में वाइडली स्प्रेड करते हैं, और वाइडली स्प्रेड करने के कारण इनके जो ऑक्सीजन की जो नीड होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। नीड होने के कारण जो ज़्यादातर ऑक्सीजन होगा वाटर बॉडीज़ के अंदर, ये इनके द्वारा मतलब थ्रू दिस प्लांट्स ये एब्जॉर्व कर लिए जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा? डिप्लीशन होगा ऑक्सीजन का। डिप्लीशन होने के कारण जो ऑर्गेनिज्म है, वाटर ऑर्गेनिज्म है, प्लैंक्टन्स, फिशेज एंड फाइटोप्लैंक्टन, दे बिकम डेड, वो मर जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो, सो इसलिए इन्हें टेरर ऑफ द बंगाल कहा जाता है। अबाउट द फैक्ट ऑफ दिस वाटर हायसिंथ के बारे में जाने हम तो क्या है? इट इज़ एन इन्वेंसिव वीड, ये एक तरह का वीड होता है। ऑन वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ में पाया जाता है। ऑन स्टैंडिंग वाटर और द स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़ लाइक द पोन्ड्स एंड द लेक्स। It is the it is the popularly known as the Terror of Bengal. I also told you it is also known as the Terror of Bengal. It spread rapid through the offset
all over the water bodies and deplete the dissolved oxygen, causes death of the other aquatic organism. Oxygen deficiency is the major reason behind the death of all the aquatic organism. ये सिंपली एक वीड होते हैं जो कि वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं, स्टैंडिंग वाटर में, कभी भी चलते हुए पानी में नहीं पाए जाएंगे। लाइक झरना ले लो आप, ये हमेशा रुके हुए पानी पोन्ड्स एंड लेक्स में ही पाए जाते हैं। इनको पॉपुलरली टैरो बंगाल कहा जाता है। स्प्रेड करते हैं रैपिडली थ्रू द कनेक्शन ऑफ द ऑफसेट ऑल ओवर द वाटर बॉडी। और डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है वाटर में जो डिजॉल्व होते हैं इनको आसानी से डिप्लीट करते हैं, बिकॉज ये बहुत जल्दी ग्रो आउट करते हैं, एंड जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होगी तो कॉजेज ऑफ death and other aquatic is also done. So deficiency is a major reason behind the death of all aquatic organism. It is introduced, ये जो firstly introduce किया गया था in India, because किस लिए introduce किया था? Because of the beautiful color of their flower and the unique shape of these leaves, इसलिए इनको introduce किया गया था। बल्कि ये तो दूसरे देशों में पाया जाता है, बट इंडिया वालों को क्या लगा कि इसको हम ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, बिकॉज द कलरफुल फ्लावर्स के कारण, और इनकी लीव्स बहुत ही यूनिक थी। बट इंडिया में लाने के बाद बहुत ही मुसीबत आई, ये वाटर ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए बहुत ही हार्मफुल हुए। सो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं कुछ पिक्चर्स। जो मैंने आपको कहा था आइस होती हैं पोटैटो के ऊपर, सो डैट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल आई that is germinate on the potato that help in the vegetative propagation के लिए हेल्प करते हैं। एंड इन द केस ऑफ द जिंजर दे हैव द नोट्स बर्ड्स एंड दे हैव द एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं इनके अंदर। एंड इन द बुलबुल, ये एग्जाम्पल है एगेव का, और इनके ऊपर एक बल्ब प्रोजेक्शन लाइक एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं बल्बिल। एंड इन द ब्रायोफिलम, दिस इज़ अ ब्रायोफिलम, एंड इन द केस ऑफ द ब्रायोफिलम दे हैव द लीफ बर्ड्स ऑन देयर सरफेस। ऑफसेट देखिए तो ये देखो, ऑफसेट एक कनेक्शन होता है, ब्रांच टाइप होता है दो फ्लावर्स के बीच में, जो कि वाइडली स्प्रेड करने के लिए मदद करता है। ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ही है। अगर ये है रनर, जो कि हमारा किस में पाया जाता है? रनर हमारा ग्रास में पाया जाता है। और ये हमारा सकर, सॉरी गाइस फॉर दिस प्रॉब्लम, एंड दिस इज अ सकर दैट इज फाउंड इन अ मिंट फ्लावर। ओके, अगर मैं आपको वाटर हाइसिंथ की पिक्चर दिखाऊं, सो यू लुक दिस पिक्चर, that is a water hyacinth. The scientific name is a Echiernia craspirus and it is also known as taro of Bengal. और अगर आप इसकी लीफ को देखो, so it's curled leaves. The leaf is a curled like a bowl that is very unique in India, and the flower color is the generally pink to the violet. So here our lecture is finished. So don't forget to subscribe the video, like the video also. Thank you so much.